सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं, ये आपको पीछे दिख रहा होगा, हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। ये सीबीएसई स्कूल है और हम कसिया में हैं, कुशीनगर कसिया। काफ़ी फेमस है ये। और हम जा रहे हैं राजीव कुमार जी से मिलने के लिए, जो यहाँ के ओनर हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है उनका। बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे डिस्कस करने के लिए कि उनकी स्कूल की शुरुआत कैसे हुई और कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया। 50 बच्चों से आज 2500 बच्चे, बहुत बड़ा एरिया है इनका। ये आपको दिख रहा होगा, अभी बसेस खड़ी हैं, चूँकि स्कूल्स बंद चल रहे हैं तो बसेस अभी खड़ी हुई हैं। ये पूरा एरिया है इनका। इधर ऑलरेडी नए क्लासेस बने हैं, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। ये पूरा एरिया इनका है। तो अभी हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस में। तो चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं, उनके व्यूज़ पूछते हैं और वो व्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। आइए हमारे साथ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में। ये है कसिया, कुशीनगर एरिया। और सर के साथ बैठे हैं और सर ने टाइम दिया हमें। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और हमारा जो आने का पर्पस है सर आपके पास, एक तो ये जानना कि आपके स्कूल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप एजुकेशन फील्ड से हुए और चूंकि अभी सिचुएशन ऐसी हो गई उसको कैसे मैनेज करें। लेकिन सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। Thank you very much, Reggie. Thank you very much, Reggie, for giving this opportunity to put my points in front of the camera. सबसे पहले तो my father is a renowned doctor over here, and I was born over here, but my education and everything has been done from outside. I have studied from Dehradun and Delhi University, graduate. After that, I started preparing for civil services. As luck would have it, I could not get through. I tried for defense also. Many times I went till the last step, but again returned back without any fruits. Then I did MBA because I had to get on my bread and butter. So that was the professional degree which could be taken with minimal hard work. So taking that route, I did my MBA and I started working for Hindustan Motors. I was selected from the campus by Hindustan Motors. Then I left my job with the offer letter from Tata Motors. I came back over here. My father had a dream that he should be having a school, a public school of his own in this area, but he was not getting anyone. Somehow the circumstances changed. I wanted to switch my things from corporate to this sector. We had a discussion. I discussed, took time with my wife. 6 months we had a discussion. Pros and cons. Everything, failure or success, would be ours. It should not be that if I fail, I should be putting the onus on someone else. That why did you call me? Because of you, I failed. If I succeed, it's our hard work. If I fail, that's our luck. No one else's. After that, we started this journey in 2013. I opened the school in 2013 with a meager number of 50 students. Huge classrooms, 5 students sitting in front. I also used to teach. My wife also used to teach. And then we had a very good team who worked along with us. I am thankful to the team at that point in time, and still we have a very good team who are working a very hard work they do, put in long hours to give better results. Now after that we gradually started this journey, and from 50 students to 2500 plus. It's a mixed feeling. Initially it was very pensive. Will we succeed or not? But as God
God's grace and our hard work, we started doing well. People started accepting us, our things which we gave out, and what I gained from my studies, my school, from Dehradun, that is helping me a lot over here. What I have given, I have tried to give something new, and people have been accepting that. So this was my journey. That's really amazing. मतलब 50 बच्चों से 2500 बच्चे, इतना मतलब इतने बहुत लंबा समय, करीबन 8 साल तक, 8 साल में तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को किया सर। लेकिन सर चूंकि ये सिचुएशन जो कोविड की सबके लिए फर्स्ट टाइम है, जी तो इसमें कैसे मैनेज किया सर? सर होता क्या है, मैं कभी हिंदी कभी इंग्लिश भी कह सकते हैं, करूँगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, होना चाहिए वो आप देख लेना। होता क्या है ना बॉस कि हॉस्टलर्स यूजुअली कैलकुलेटिव हो जाते हैं, हमें कैलकुलेट करके अपनी जिंदगी को चलाने की आदत पड़ जाती है, और ऐसे हॉस्टल में थे जहां उस समय पैसा अलाउड ही नहीं था। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव seen or taken the things in a very calculative way with lesser liabilities and more of productivity. अब इस कोरोना काल में, और ये भी कहा जाता है कि अगर आप पॉजिटिव माइंड से कुछ करें, दो आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिविटी रखें तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। People coming to my campus was not very beautiful, but in this 1 year, I have made my campus a smiling campus. People now coming, the parents who were there before this, and now they say, sir, आपने पूरा काया पलट कर दिया, चीजें पलट दी। इसमें इस दौरान क्या हुआ कि सबसे बड़ी चीज की पॉजिटिविटी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी टीम जुड़ी हुई थी। अगर मैं नेगेटिव होऊंगा तो मेरी टीम रोएगी। मुझे अपने टीम को पॉजिटिव रखना था, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो उसमें फिर मैं लूज करूंगा, एजुकेशन जाएगा। अगर मैं बीच मझधार में छोड़ देता कि भाई टीचर्स को बोलता यू गो लिव योर लाइफ, आई एम नॉट गिविंग दिस सैलरी, वो बेचारे कहां जाते? When in good times they were with me, in bad times I should be there with them. मैं कहां से अरेंज किया? That is my lookout. But I did not leave even a single person out of my team. The highest person sitting at the top and the lowest person at the lowest end, the sweeper, the driver, or the helper, I have not taken them out. I have not fired them. I have not issued the pink slips to anyone. I have given them salary, 12-month salary, though 100% no one has given, but yes, I have given them to live a decent life, and they should continue their family's life in a proper way. भूखों नहीं मरने देना है, और उसका नतीजा है कि आज ये सारे लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। Many teachers have been getting offers from outside. Now they are saying, अगर उस दौरान ये व्यक्ति हमारे साथ खड़ा था तो आज आप ऑफर दे के क्या कर रहे हैं? आप उस समय आते जब कोरोना का चरम था, आप मुझे उस समय कॉल करते तो मैं आपके पास आता। लेकिन अगर मेरे डायरेक्टर सर ने या यहाँ का मैनेजमेंट मेरे साथ मरते हुए समय में खड़ा था, तो आज मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर मी, बिकॉज एनीथिंग विल सक्सीड, अ बिग ऑर्गेनाइजेशन विल ओनली सक्सीड व्हेन योर टीम इज गुड। इफ योर टीम इज बैड, you will not at all succeed. आप अकेले डबली नहीं बजा सकते हो। आपको एक बैंड, शादी में बैंड बजता है ना, तो अच्छा होता तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बैंड है। तो मुझे बैंड बजाने के लिए, एक अच्छा म्यूजिक निकालने के लिए मुझे पूरी टीम अच्छे से बांध के रखना है, and they are there working for it. That is the, now that you have come to my campus for the first time, I told you that when you entered, this campus would have been smiling at you. एक होता है कि अंदर आते ही रिपल्शन सा होता है। When you came here, you said, sir, आप इतना अपबीट कैसे? मैं कहा यार मस्त रहो, जिंदगी तो चलेगी ही चलेगी, ऊपर वाला दे रहा, मेहनत करो और पॉजिटिव रहो, things will work positive for you. There is no doubt about it. People, the management people, many schools have been saying,
सर ये हुआ सर हुआ, जो बीत गया वो तो खत्म हो गया ना, उसको छोड़ दो, नया जो आ रहा है उसको देखो। जो घाटा होना था, फायदा होना, तो वो चला गया यार, लीव इट। नया देखो, नया दिन, नया सूरज देखो, मस्त रहेगा। और आज भी अगर सरकार ने बंद किया है तो ठीक है, हफ्ते बाद खुलेगा, देखा जाएगा, मर थोड़ी रहे हैं। हाँ, ये जिंदा रखो, अपनी टीम को जिंदा रखो, आप दौड़ोगे। That's really great, sir. That's really great. Last चीज आपसे पूछना चाहेंगे सर, बोलना चाहेंगे आपका मैसेज टू ऑल आवर व्यूअर्स, टू द स्टूडेंट्स जो बच्चे इसको देखते हैं, टू द पेरेंट्स जो इसको देखते हैं, क्या मैसेज होगा सर? Sir, in this 8 years down the line, what I have realized is कि सर किसी भी बच्चे का पाठशाला सबसे पहले उसका घर होता है। उसका रोल मॉडल उसके फादर होते हैं, उसके रोल मॉडल उसके मदर होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, उसका भाई होता है। हम तो बाद में आते हैं, हम 3.5 साल 4 साल बाद आते हैं, उनके लाइफ में स्टेप करते हैं। वो आपकी चीजों को देखता है। अगर आप जो कुछ भी किसी के लिए बोलोगे, वो व्यू उसके लिए बच्चा अपने माइंड में बना लेता है। अगर आपने, ठीक है, स्कूल आपको बोलता है कि आप ऐसे करवाइए, पढ़वाइए घर पे, आप उल्टा बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो बच्चा भी बोलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। फीस के लिए बोला जाता है। अगर आप नाखुश हो स्कूल से, प्लीज डू नॉट वेंट आउट योर एंगर इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, बिकॉज he is catching up everything. Either your son or daughter is in 12th or is in nursery. He or she is catching each and every word of yours. आप मुझे गाली दो, एक अलग कोने कमरे में जाके जितना गाली देना हो दे दो, लेकिन अपने बच्चे के सामने कम से कम ये मत बोलो। अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो बुराई मत करो, क्योंकि बुराई बहुत तेजी से बच्चा पकड़ता है। बाकी पढ़ाई का जहां तक है, अगर स्कूल बंद भी होता है कोरोना काल में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी 2 बेटियां हैं, रेगुलर बेसिस पे हमारे स्कूल में लाइव क्लासेस चले हैं। जिस दिन स्कूल बंद हुआ 24 तारीख को, 24 मार्च को, 26 तारीख से हमने लाइव क्लासेस चालू कर दिए, वेयर द मटेरियल एंड रिकॉर्डेड मटेरियल वर अपलोडेड ऑन द साइट। आफ्टर दैट we started from 19th June, we started live classes, interactive classes. The teacher used to come and teach them. तो जो वहां पढ़ाया गया है, उसके बाद आपको घर पे कभी भी बच्चे के साथ हार्ड वर्क करना होगा। पहले आप एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आज से 10 साल 20 साल पहले टीचरों के बच्चे हमेशा सक्सेसफुल होते थे, क्योंकि टीचर नेता नहीं होता था। टीचर स्कूल से आता था, अपने घर पे अपने बच्चे से पूछता था, बेटा क्या कर रहे हो, और वो उसका लेखा जोखा रखता था। आज वैसा माहौल नहीं है, हम ला सकते हैं वैसा माहौल। शहरों के बच्चे, लोग बोलते हैं शहरों के बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। Why is it so? Because in the cities, person coming from the office straight away goes to his house, has a cup of tea, and then he sits with his child or daughter and take the whole day's routine. Beta, what did you do in the school? What is the homework which you have been provided? What are you doing? What are you planning? You should be sitting with your child. आप 1 घंटे बच्चे को दीजिए, सक्सेस 100% आएगा। लेकिन आप ये सोचें कि पढ़ाई पैसे से हमने खरीद लिया, एक बहुत बड़े स्कूल में डाल दिया, इतना पैसा फीस दे रहे हैं, तो आप केवल अपना कॉलर टाइट कर रहे हैं, अपने बच्चे का भविष्य नहीं बना रहे। You put someone in Oxford also and you do not take care of that person, he will fail in life. It is the father or the mother or the grandfather or grandmother or the brother who has to take care, who has to instill some good habits in the child, then only that child will succeed, or else everyone is there running on the road, your child will also increase 1 number in that thing. That's really amazing sir. मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छे से चीजों को आपने एक्सप्लेन किया सर। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और इतने अच्छे से हमें चीजों को बताया सर। Thank you, Reggie, for giving me this opportunity, and I would like these things to come up because no one does all these things. So this is the we are trying,
हमारी अपनी कोशिश है कि हम स्कूल की अच्छी चीजों को भी बाहर बताएं, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग सबको दिखती है, लेकिन वो बिल्डिंग बनी कैसे है और उसमें कितनी मेहनत या कितना लोगों की ताकतें लगी हैं उसको वहां तक लाने में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो भी लोगों को पता लगनी चाहिए कि ये बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनी है और किस तरीके से कितने लोगों ने इस पे सेक्रीफाइस किया है, अपना टाइम, एनर्जी और चीजें उसमें इन्वेस्ट की है, तब वो चीज बनी है। तो वो एक कोशिश हमारी है कि स्कूलों के बारे में खराब चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं, लेकिन अच्छी चीजें जो है वो कभी बाहर नहीं आती। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे ये चीज सक्सेस होगी। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपके इतने अच्छे थॉट्स के लिए। Thank you very much, Reggie, for this initiative taken by you and your company. And I appreciate that at least someone is looking into the hard work of the people who are providing these things. Building सही बात है, आप कहते हैं building बड़ा अच्छा लगता है, but उसका सृजन, उसका विकास करने में देखिए ये लोग बिल्डिंग कहते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका पसीना, उनका रातों की नींद जाया करना, ये no one has thought over it. People have not seen the way they have been running after things. कैसे अच्छा से अच्छा करते, कैसे अच्छे से अच्छे बिल्डिंग प्रोवाइड करते, कैसे बॉस initial days we have taken the students in our lab, गोद में उठा के हम ले जाते थे बच्चे को क्लास में रखने के लिए, मुंह हाथ से धुलवाए, पेशाब कराने तक ले जाते थे, because the finances were less. ये कोई नहीं देखा। आज जब we are in a full blown mode, people are saying अरे इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, वो कहीं से तो सृजन हुआ होगा, उसका हार्ड वर्क तो देखिए कि वो कैसे किया है। Appreciate, be appreciative in life, आप सक्सीड करोगे। अगर आप क्रिबिंग नेचर रहेगा, you will never succeed। Appreciative रहोगे, कुछ नहीं होगा, हंसते हुए जिंदगी गुजर जाएगी, चाय में भी खुश रहोगे और बन मस्के में भी खुश रहोगे और बटर चिकन और मलाई कोफ्ते में भी खुश रहोगे। बी हैप्पी इन लाइफ, एप्रिशिएटिव बनो, पॉजिटिव बनो, नेगेटिव मत बनो। यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज बिल्डिंग अ लाइफ, एक बच्चे की जिंदगी आप बना रहे हो, एंड देयर आर सेवरल हंड्रेड पीपल हु आर अटैच्ड विद यू। यू हैव टू बी द बेस्ट एग्जांपल फॉर देम। पीपल, द स्टूडेंट्स लुक एट यू एज अ रोल मॉडल, मुझे भी ऐसा बनना है। It has to be in that way. It is not that कि आप पैसा कमा लिए और बड़ा सा अच्छा ऑफिस बना लिए तो आप बहुत बड़े बन गए, नहीं, आपके कर्मों से आप बड़े बनोगे। हमें ये संस्कार देना चाहिए बच्चों को। बच्चों के सामने उल्टा सीधा मेरा रिक्वेस्ट है, नहीं बोलना चाहिए। अच्छा बोलिए, वो अपनी वाणी अच्छा रखेगा, थोड़ा विनम्र बनिए, बच्चा भी विनम्र बनेगा। लेकिन फ्लिप साइड ऑफ दिस, अपने बच्चे को थोड़ा सा नॉटी और बदमाश भी बनाइए, बिकॉज द लाइफ विच इज कमिंग अहेड इज नॉट फॉर द वेरी डिसेंट वंस। वो लोग आपके ऊपर चढ़ के चले जाएंगे। ऐसा बनाइए कि वो दुनिया को टैकल कर सके, उससे लड़ सके, अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए। क्या बात है, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से चीज़ों को बताया, अपना टाइम दिया। तो हमारी उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम पे चीज़ें जल्दी नॉर्मल हो और सारी चीज़ें वापस अपने उसमें रूटीन पे लौट आए सर। तो थैंक यू सो मच आपके प्रेशियस टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच रेजी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीवन।